चला जाता है, बार-बार वीडियो खराब होता है, हर रोज़ हो रहा है, क्या करूँ समझ नहीं आता, cannot understand what's happening, pausing is doing, the camera stops working, something happens, it comes on the video is broken, no problem at all, we are just check it again, and coming back to same discussion what's being done now, just few minutes back that we are sleeping society and we cannot take seriously everything, but other countries are not that, people in other countries are much more smarter than us, though they are Arabic, they may be European, they are more better than us because they know what is value of their rights. They trust their governments and they mistrust their government. They remove them. It happened in many countries. Their powers have been removed, but in our country it cannot be removed like that. We are very, very cruel. No, we are not cruel. People are cruel. We are no, can't say. We say we are smart people. We allow injustice to go with us. Injustice to go with us. We don't care. If we are looted, we don't care. If we are beaten, we don't care. Our constitution cares. It gives us values. We don't better sectors. Again, I'm telling you, our constitution is a great one, and we are not great one. We are not worth having that constitution, but we are having that. This is thanks to those people who constituted the constitution for us. We don't understand the value of that one. We shall never understand because we are that sort of people. We are not a good sort of people, and we should understand that how to remedy that. And I want to teach those youth who are just relying upon certain leaders, political leaders, who don't understand their studies, who don't know what they are, who don't understand that they are power for this nation, the future for this nation. They are just busy in believing these leaders, and these leaders are not worth leaders. These leaders were drawing back this country to old times, and these people should understand why they are doing this, but they don't understand. They are just believing in a world which is myth one. We have to come off that and we have to abide by constitution. We have to think for constitution. We have to work for constitution. We have to think for this nation. We have to think for these people, and only then we can amend this. Because more than 50% people are still not that level which they should be, and we have to teach them. This happens in every country. But those people have suffered, but we have not suffered. We have been given liberty. We have no freedom, and we have been rights without any problem. And that's why we don't value that. Whatever one person is elected and so on, we trust them. People don't trust somebody. Believe me, be a quality editor. Be an editor. Everybody should be an editor in this country. Auditor in the sense that you have to check what's required. Is it happening or it's not happening? If it's happening, that's very fine. It's a very welcome step, progressive step. But something is not happening that's required. We have to create happen. We have to push that happen. We have to force that happen. If we cannot force that happen, means we are not doing our job. Those elective people, those in you can say people are professionals, they should do this first. They are actual leaders of this country in professions. Political leadership is rubbish. And you can say that leadership only for sake of the post, but professional leadership is very high. That must be valued, that must be done. Those people cannot talk a lot, those people cannot waste time, those people understand what time is, and that's what professionals are. Advanced study in practice as well as in theory. Advanced study makes you professional and not waste of study, not just experience. Experience is a part of study, and those professionals who can understand, but unfortunately they are not contributing to this country in different way. They're just contributing from their professional viewpoint or not their social viewpoint. Social viewpoint is a must. It's a part of engineering that you have to think for society. You have to think members belong to society. You have to think for women. You have to think for children. You have to think for all classes of people. But we are not doing that. Social engineering is not a profession, but it is a must. We are not doing anything of that, but without society, without existence society, we cannot do something for whom society is our client. We have to work for them, and whatever society in whatever country, we have to go there. We have to work for them. Otherwise, there is no need of anything. Society is there, we are there. If society is not there, we are not there. We have no meaning of this profession. I mean, there's no meaning of this in society. If there's no need for people don't require anything. Nobody will trust me, nobody will use me. And I want to be used by what? I want to use by my country. I want my service to go them. But how? If I'm not allowed to work, if I'm not allowed to take quality, if people start their way, if I talk of quality and safety there, no, not all this is like, let it go as it is going on. This means I'm not useful there. I can't do my service there. If I have to just repeat things happening relevantly and happening qualityless, I should keep that out. It's not done. It's not accepted. I will not accept that as an engineer. Though maybe I don't have money, I don't mind that. Money is not my result. Money is one part of result. My result is that delivery of project on which I'm working. So I'm paid 1/10, no problem. Okay, it's my choice. It's my option whether I accept or I don't accept that. If I reject that, finish. You reject something. I'm not a conventional person. You should not be a conventional person. Convention has got a meaning. Your profession doesn't mean convention.
Profession is reality. Profession is delivery. Profession is proaction. Profession milestone. Profession is target. Profession is destiny. Profession will achieve that. It's not luck, it's not fortunate. There's no fortune working there. There's no stars working there. You are a star, you are a leader, you have to work there. You have to think. Think is more important than delivering also. Think good, you will do good. If you don't think good, you will do good. So think and think to the power. Think is not a thought, school of thought, call it a thought, profession, thought. It's a profession. Profession, what is profession? You have to immerse yourself in that profession. You have to immerse your mind in profession, and that is profession. You have to immerse your mind there, calculate there, think there, research there, bring out something new. That's profession. Work out something new. That's profession. That is research. That's innovation. If you do that, you have no physical limits because mind develops, act develops, deeds develop, everything develops. Output develops, input develops, that is required. But again, I say those people who constituted us, who gave constitution to us, they were also professionals. Of course, they were not civil engineers, they were advocates, they were barristers, they had different kind of knowledge and experience and decades of struggling experience. They have decades of, you can say, normal, below normal life experience, sacrificing experience, losing experience. They faced all those negativism which avoid now. Struggle, and just imagine 90 years of a struggle. 90 years, how many generations could have been changed? How many, what level of life that was? And they struggled in that. And they brought to us something which we now value or don't value. But they did that. Just imagine if conditions that time and this time, what's difference? You will find major difference. But they did. They walked without caring for eyesight loss, without caring for stresses, without caring for mental strains. They continually work for us. And we are not imaginary, we are not having any power to imagine their struggle, their intensity of depressions, their intensity of stresses. We are not able to conceive that even. But they did that. They worked on that, they digested that, they disposed of that, and they felt happy. They felt happy, of course they were happy. That's why they did it. If they had not been happy, they would not have done this. It's a factual. It will be all, I'm telling all, I'm not telling one man there, all freedom fighters. And all, not only in this country, in every country, wherever they will struggle. Those people in other countries are hard-blooded people. They want justice. And we have no blood at all. We don't care for justice. We are granted justice or we are not granted justice. It doesn't make any help to us. It doesn't make anything. But we accept everything. We accept. We go on accepting everything, whether it is right or it is wrong, without caring for that. We do that. Why we do that? We don't know ourselves. But we have to start understanding now. Okay, we missed whatever we missed. We have to think and start from where we understand, where we start understanding. You are to understand yourself first. What are you? In which country you are living? In which country we are living, you have to understand what rules are there, what laws are there, what constitution is there. Until you understand that, you cannot change your country and you cannot change the world. You should be you should be thankful to those countries where revolutions are going on, political revolutions, social revolutions, and those are generating further. They are not yielding, they are not sitting because they want future. They want to see beautiful future. They want to see hard-working future. But in our country, everything is silent. Everything is silent. Do whatever you want. They are within yoga. They are within yoga. Only deep respiration, deep breathing. We are not interested in facts. We are interested in self-cheating. We are interested in self-deceiving. That is what we are interested in. I don't want to stay in one topic. Too much is going in whole world, and whole world is impacting us also. We may say, we may not say, we accept, we may not accept. Our problems start from somewhere and make problems somewhere else.
We used to have demonstrations in this country in past. We should have everything democratically, which are not in other countries. But we taught them and they learned better than us. They are repeating that. They are doing that now. We have to means other people can learn from us and we can forget ourselves. Something is happening in Lebanon, something is happening in Libya, something is happening somewhere else in Europe, something is happening in many other Europe countries, something is happening in America. Everywhere you are finding some England, Australia, something is something Iran, something is something everywhere, Hong Kong. We have to consider all this. We should forget somebody's superpower nowadays. Nobody's superpower. Everybody's financial power. Everybody's financially oriented. We all know what's happening. Why are we failing in that? We, again, I say, are not small country, not small owning countries. We are a big country and we have everything with us. When we have mind, we have money, with everything. But we don't want to use that. We are just ready to become servant of ourselves, servant of government, and do whatever they want us. No, government is not doing for us. They will not do what we have to do for government. We have to teach them lessons. We have to taught them. We have to instruct them. They are our clients. We are clients. They are our servants. We have to tell them to this. We cannot live exclusive to government. Whatever they are doing is right. We have to apply constitution. We have to preserve constitution. We have to ensure this constitution is working fine. We cannot exclusively rely upon president or upon Supreme Court. Our rights are not violated. We have to check ourselves. And that's why audit action. The audit action is very important. People can teach us directly from overseas. We cannot accept that. We just leave it to exclusive institutions. If institutions do not work, we have to speak other institutions. We have to teach them also how to work. This is what's required by intellectuals. But intellectuals are just accepting only restrictions. They don't want to move beyond because everybody is interested in self, not interested in society, not interested in nation as whole. जितना मर्जी सोच ले हम, जितना मर्जी सोच ले, भारत है ये, किसी के बाप का नहीं है, पब्लिक का है। आपको बुरा लगे जब मैं ऐसा कहूंगा, लेकिन सच तो यही है। ये हम भूल जाते हैं कि ये भारत हमारा है। हम ये भूल जाते हैं कि हम इसके मालिक हैं, हम इसके स्वामी हैं। क्योंकि हम कोई कहता है संविधान कि आप हमारे स्वामी हो देश के, लेकिन स्वामी का मतलब ये नहीं कि मालिक बन गए हम। स्वामी का मतलब ये है कि हम इस देश के स्वामी हैं, इस देश की सेवा करने के लिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश में वो सब करने के लिए जो पहले नहीं हुआ या हुआ उसको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हम ये नहीं समझ सकते क्योंकि हम बुद्धू हैं, और बुद्ध भी नहीं आना चाहिए। हम सोने वाले हैं, सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, उठना नहीं चाहते, दिमाग से सो जाते हैं, आंख से बेशक ना सोएं, उठना नहीं चाहते क्योंकि हम डरते हैं। ऐसा डर हमारे सीने में है, पता नहीं किस बात का डर है, मुझे तो समझ आज तक नहीं आया। अगर इस बात का डर है कि आपको उठा के कोई प्रधानमंत्री जेल करा देगा, इससे ज्यादा तो वो भी नहीं कर सकता। जेल में आपको पुलिस तंग करेगी, उससे ज्यादा तो वो भी नहीं कर सकती। तो जब वो नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकता, तो किस बात का डर है? क्या डर है हमको अपने आप से? क्या डर है हमको संविधान से? क्या डर है हमको राजनीतिक दलों से? हमें कोई डर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें तो प्रधानमंत्री से भी नहीं डरना चाहिए। होगा प्रधानमंत्री, लेकिन हमारा तो सेवक कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं हम सेवक, तो करो सेवा, सेवा करो, सोचो हमारे बारे में, हमें क्या होना चाहिए आप बताइए, हम क्या करें आप बताइए। आपको बताना होगा, आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। अभी तक तो नहीं क्रिएट हुआ, लेकिन करना तो पड़ेगा। कौन समझाए हमें कि हम भारतवासी हैं? कौन समझाए कि हम इंडिया में रहते हैं? कौन समझाए हमें कि हमें संविधान है? कौन समझाए कि संविधान में ये सब लिखा है? कौन समझाए हमें कि हम देश में क्या क्या कर सकते हैं? कौन समझाए कि हमें क्या करना चाहिए? कौन समझाए कि हमारी पढ़ाई होनी चाहिए? कौन समझाए कि हमें शिक्षा मिलनी चाहिए? कौन समझाए कि हमें स्वास्थ्य मिलना चाहिए? कौन समझाए कि हमें आगे भविष्य मिलना चाहिए? कौन समझाए हमको? कोई समझाएगा नहीं, कोई नहीं समझाएगा।
हम क्यों बैठे रहते हैं? जैसे स्टूडेंट विद्यार्थी क्लास में बैठा होता है, टीचर आएगा तो मुझे पढ़ाएगा। भैया जब तक आपका दिमाग काम करता है थोड़ा बहुत सीखे तो अपने आप ही पढ़ लो ताकि अच्छी तरह पढ़ सको आप। ऐसा नहीं है, ऐसी प्लानिंग नहीं है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। आप किसी बच्चे से, किसी स्टूडेंट से, किसी 12वीं 11वीं वाले से, 10वीं वाले से, 9वीं वाले से, 8वीं वाले से बात तो करके देख लीजिए, आप संविधान के बारे में हंस देगा। बस होता है कि कुछ ज्यादा उसे नहीं जानता। मैं ये नहीं कह रहा कि संविधान जानना काफी है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि संविधान के अंदर क्या फायदा होगा, लेकिन आपको अपने बारे में जानना मिलेगा कि आप क्या कर सकते हैं देश के लिए। बहुत से लोग सवाल कर सकते हैं कि देश के लिए आपने, हमें क्या कर रहे हैं देश के लिए, हमें क्या पता, हमें कोई कहते नहीं रहा। अरे कोई कहता थोड़ी है भाई, देश आपका अपना है, घर आपका अपना है, उसको अपना समझते तो करो, नहीं समझते तो बोलो ना, राजनीतिक विषय मत लाओ बस। जनता जब तक राजनीति के चुगल से बाहर नहीं आएगी, इन बदमाशों लुटेरों के बाहर से बाहर नहीं आएगी, तब तक हम अपने देश का सुधार नहीं कर सकते। हम बेशक शोर हो जाते रहे, हाँ इतना जरूर है कि बार बार चुनाव होते रहेंगे, हम वोट देते रहेंगे, उसकी हमने कसम खाई है कि हम वोट जरूर देंगे, जबकि कसम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वोट देने का मतलब ही नहीं है इस देश में आज की तारीख में। आपके वोट की वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू नहीं है। आपकी वैल्यू तब होगी सोच समझ के वोट देंगे, लेकिन आपने तो वोट देना है अंधविश्वास में, राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, उसके नाम पे, इसके नाम पे, तो आपके वोट की वैल्यू क्या है? हम तो किसी के नाम पे वोट दे रहे हैं। आप वोट दे नहीं रहे अपने लिए, आप दूसरों के लिए वोट दे रहे हैं। अपने लिए वोट देते तो ये बात नहीं होती। खैर छोड़ो, वोट से कोई लेना देना नहीं आज की तारीख में। सवाल ये है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। हम छोड़ दें नेताओं पे कि कुछ भी करो, छोड़ दें पे हम, क्यों छोड़ दें? हमारा फर्ज बनता है, हमारा जो पैसा जा रहा है कहाँ जा रहा है, क्योंकि पैसा हम देते हैं, सरकार नहीं देती है। हम सरकार को पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसके बाद उनकी नौकरी चलती है सरकार की, उनके अफसरों की नौकरी चलती है, और हमारे भी अफसर हैं वो। तो हमें सोचना तो यही होगा कि हम क्यों पागल बने जा रहे हैं इनके बीच में, इनकी बातों में हम क्यों पागल बनते जाएं। क्या हमको इतनी भी अकल नहीं है? क्या पढ़ाई लिखाई में हमने नहीं सीखा इतना कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कौन बताएगा? जंगल से हीरा के बताएगा, या आपका सीधा सागर से विष्णु आके बताएगा? कौन बताएगा? सीखना तो आपको है, करना आपको है, किसी और ने नहीं करना। आप नहीं करेंगे तो आपकी गलती है, करिए, आप कौन रोकता है आपको? लेकिन आपको करना नहीं है। आपको पैसे मिल जाए ना, आपको दारू पीनी है, आपको सोना है हलवा खा के, आपको सेलिब्रेट करना है, आपको मंदिरों मस्जिदों में जाके अपना काम करना है, आपको देश के लिए कुछ नहीं करना है। देश के लिए आपने एक आदमी को पीएम बना दिया, बस हो गया आपका मस्त पूरा, आपका काम पूरा हो गया। उसके बाद अपने आप देखेंगे, अपने आप करेंगे, मुझे क्या इंटरेस्ट है भाई? सही बात है, आपकी एक बात भी सही है। आपको क्या इंटरेस्ट है? आप थोड़ी प्रधानमंत्री हैं, आप थोड़ी राष्ट्रपति हैं, आप कर भी आ सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ बार बार, सरकार को मैं कुछ नहीं समझता, मैं यही कह रहा हूँ। सरकार वरकार कुछ नहीं होती है, पब्लिक सब कुछ होती है। सीखिए विदेशों से, सीखिए, मौका है। क्या होती है सरकार? आपसे बहुत छोटे छोटे देश, बहुत छोटे छोटे देश, वो सिखा रहे हैं आपको आंदोलन क्या होते हैं, पावर क्या होती है, सरकार को कैसे हिलाया जाता है, वो आपको सिखा रहे हैं। कमाल है। भारत को सिखा रहे हैं वो लोग जो जानते नहीं कुछ, जिनके पास कोई संविधान नाम की चीज नहीं है, वो हमें करके दिखा रहे हैं। और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? कराया सिखा रहे हैं आपको वो लोग कि देखो ऐसे होता है एक्शन, ऐसे होता है क्रम, ऐसे लड़ाई की जाती है सरकार से, सरकार को ऐसे गद्दी से उतारा जाता है, ऐसे सबक सिखाया जाता है। इतना तो वो सिखा रहे हैं आपको, और आप इतना भी नहीं सीख के कौन सब बोल सकते? सोचिए जरा, आप बोलेंगे नहीं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, आप चिल्लाएंगे नहीं तो आपको कोई सुनेगा नहीं। ये बहुत जरूरी होता है, लेकिन आप नहीं करेंगे, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। अरे प्रधानमंत्री साहब के बारे में आप ऐसी बात कर रहे हो, सही बात है यार, बात हम करें तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? आपको क्या समस्या हो रही है? हम आपसे तो नहीं कह रहे आप बोलो ऐसा, लेकिन नहीं, आपने तो कहना है, क्योंकि आपको कहा गया है कोई भी इस गवर्नमेंट के खिलाफ, इस प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले, आप उसको बोलने मत देना, ये कहा गया है।
तो इसके ऊपर क्या रिजल्ट है? हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम किसको बोलेंगे? हम अपने आप को बोले और शांत हो जाएं बस। उनकी उनके ड्रामे उनको करने दें, जो गवर्नमेंट के ड्रामे हैं जो कर रहे हैं, और आप चुपचाप हो जाएं, 5 साल तक देखते रहें, उसके बाद फिर वोट देके फिर आ जाएं, फिर देखते रहें। यही तो साइकिल बन गई है हमारी, यही इतिहास बन गया है हमारा, यही करंट है, यही आज के तारीख में बन रहा है, और हम उसको हटाएंगे नहीं। बार बार कहता हूँ, रोज कहता हूँ, समझाता हूँ, लोग समझना नहीं चाहते, हर चीज को मानने को तैयार रहते हैं हम, जिससे बात करो कुछ पता नहीं, टेलीविजन में नहीं आया जी। अरे भाई, आप टेलीविजन में न्यूज नहीं आई तो मेरा कसूर तो नहीं है ना। आप इंटरनेट पे जाके देखो, आप यूट्यूब पे देखो, आप फॉरेन न्यूज देखो, कुछ भी करो आप, क्यों नहीं देखते भाई? और इन इन टेलीविजन वालों से क्यों नहीं पूछते आप? क्या आप गुलाम है टेलीविजन वालों के भी? सरकार के तुम्हारे आप गुलाम हैं, प्रधानमंत्री के आप गुलाम हैं, क्या आप टेलीविजन वालों के भी गुलाम हैं? पैसे देते हैं भाई, क्या पैसे नहीं लेता टेलीविजन वाला जो दिखा रहा है हमको गलत चीजें, जो दिखा नहीं रहा न्यूज हमारी जो चाहिए हमको? हम 363 रुपये लेता है आज की तारीख में टाटा स्काई नॉर्मल नॉर्मल फ्री वाली की, उसके बाद वो अलग लेता है बाकी चैनल की देखा जाए तो भैया 300, जो भी वो लेता है वो अकेला तो नहीं लेता ना, उसका वो नेटवर्क में भी देता है, उसका वो उन चैनल्स को भी कुछ देता होगा जो हम दे रही हैं। ये मैंने तो पैसा दे दिया टीवी देखने का, मुझे तो सारी न्यूज चाहिए, और अगर आप न्यूज नहीं दे सकते तो भैया अपनी चैनल बंद कर लो। अगर आप मुझे हमारी सारी न्यूज नहीं दे सकते, समाचार नहीं दे सकते, तो अपनी चैनल बंद करके जाओ। हम तो वो चैनल चाहते हैं देखना जो सारी न्यूज दें, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या सरकार के फेवर में हो। हम नहीं चाहते कोई भी न्यूज चैनल चमचा बन के रह जाए, भक्त बन के रह जाए सरकार का, नहीं होना चाहिए। हम पैसा दे रहे हैं तुमको, मुफ्त में नहीं दे रहे। जितने हम पैसा दे रहे हैं, हम आपके ज्यादा व्यूअर्स हैं, उसी हिसाब से आपको फिर एडवर्टाइजमेंट मिलती है, आप उससे कमाते हैं। लेकिन आप हमको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप हमें इग्नोर करेंगे तो हम आपको इग्नोर करेंगे, हम आपको टीवी देखना बंद कर देंगे, हम नहीं देखेंगे आपकी न्यूज। हम आपकी न्यूज क्यों देखें? पागलपन का नशा क्यों करके बैठ जाए? हाँ, बिना बात की बात, कोई बात नॉलेज बढ़ाने की नहीं, कोई बात दुनिया में क्या हो रहा है उसकी नहीं, फालतू की बकवास लेके आप रोज बैठ जाते हैं सुबह से रात तक। क्यों भाई? आपको ऐसा क्या हुआ है कि आप ऐसा ही कर रहे हैं कि आप बचपन से ऐसे ही थे? आप सोचते हैं कि आप राइट राइट में लाके सब कुछ बंद कर देंगे और जैसा वो कहीं करते रहेंगे? ऐसा नहीं चलेगा। आप पैसा लेते, सर्विस दीजिए, नहीं सर्विस दे सकते पैसा वापस दे दिए और पैसे ले जाइए। ये सवाल इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये बहुत जरूरी है जानना। आखिर हमारा देश है, किसी और का देश नहीं है ये भारत भारतवासियों का है, इंडिया का है। हमारा संविधान है, हमारा ज्ञान है, हमारा विज्ञान है, हमारा मस्तिष्क है, हमारा फिर स्ट्रगल है, हमारी जातियां हैं, हमारे धर्म है, सब कुछ है यहाँ। फिर भी संविधान कहाँ, पता नहीं रद्दी की टोकरी में गया या हमारे से कहाँ फेंक दिया। हमें क्यों खुंदक हो जाती है इतनी कि हम उसको जानना नहीं चाहते? एक ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए हर विद्यार्थी में कि मैं पहले ये तो जान लूं कि मैं हूं कौन। फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं जान ही लूंगा, वो तो मुझे पढ़ाई जाएगी। बायोलॉजी भी मैं जान लूंगा, ड्राइंग से डिजाइन भी मैं जान लूंगा, कॉमर्स इतिहास में भी जान लूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी मैं जान लूंगा, सब कुछ मैं जान लूंगा। लेकिन पहले भारत को तो मैं जान लूं। हम भारत को नहीं जानना चाहते, भारत देश को नहीं जानना चाहते, भारत संविधान को नहीं जानना चाहते। बस अपने ख्यालों में हम बस कोई बैठा है उसको जानना चाहते हैं, और कुछ भी करता रहे हम पूछना नहीं चाहते। क्यों नहीं पूछना चाहते आप? किस बात का डर है आपको? उसको डर है आपसे और आपको डर है उससे। अफसोस तो इस बात का है, वो आपको इतना कूटेगा, आपको बोलने नहीं देगा और आप भीगी बिल्ली बन के बैठ जाएंगे। क्यों? किस लिए? किस लिए सब? क्यों नहीं जानना चाहते आप? बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको नहीं जानने की? ये देश आपका है, ये समाज आपका है, ये परिवार आपका है, ये राज्य आपका है, ये पूरा आपका है, सब कुछ आपका है। तो आपको पूरा अधिकार है उससे पूछने के लिए कि प्रधानमंत्री बताइए आपने ये क्यों नहीं किया, राष्ट्रपति बताइए आप चुप क्यों बैठे हैं। हमारा अधिकार है, पैसा देते हैं भाई, मुफ्त में नहीं कह रहे हैं आपसे। आप बोलते रहे कुछ भी, आप गरीब थे अमीर थे, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है।
हमने आपको पोस्ट दिया है, हम काम लेंगे आपसे क्योंकि आप पैसा लेते हैं, नहीं तो जाइए, आपको नहीं करना तो। 140 करोड़ लोगों में प्रधानमंत्री बहुत हैं, सच कुछ तो सारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो तब जब उनको नॉलेज होगी। आपको भी नहीं है नॉलेज, जो आप सीट पे बैठे हैं, नॉलेज हो तो आप ये काम नहीं करते। लेकिन हम जानते हैं हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हम सोच क्यों नहीं सकते? हर भारत के वासी को अधिकार है कुछ एज के बाद पीएम बनने का, जो कि वो बन सकता है और बन रहा है। क्यों नहीं बना अब तक? आप जवाब देंगे। आपने 5 साल में क्या एक्शन लिया उस पर? अगर वो नहीं चलता है, नहीं कुछ, बसें क्यों नहीं रोकी उनकी? उनकी उनकी काली काली गाड़ी क्यों नहीं रोकी उनकी? नहीं रोकी आपने। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस सोना है। मेरा भारत सोने वाला, मेरी पब्लिक सोने वाली, मेरा भारत गंभीर नहीं, मेरी पब्लिक गंभीर नहीं, यही है भारत की जनगण मन। हम बोलते रहे, हम भारत माता की जय बोलते रहे, हम जय भारत बोलते रहे, कुछ फायदा नहीं इसका, क्योंकि संविधान तो डस्टबिन में है। संविधान अपने का हुआ है, संविधान की रिस्पेक्ट नहीं करते, संविधान को हम क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि हम जानते नहीं संविधान क्या है। संविधान है वो, मेरा आपका भविष्य है वो, मेरा आपका अधिकार है वो, मेरा आपकी स्ट्रेटेजी है वो। हमारे घर में बिजली आती है, संविधान के जो कानून बने उससे आती है। हम जो पढ़ते हैं, संविधान ने ऐसा कहा है तो हम पढ़ते हैं। ऐसा कोई अधिकार, समान हमारा खाली नहीं है। समान समान संविधान हमारा बोलता है, जो जोर से बोलता है, हम सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम डरपोक हैं, डरते हैं। क्यों नहीं सुनना चाहते? मैं जवाब नहीं दे सकता इस चीज का। पब्लिक है, पब्लिक जाने, पब्लिक को डिसाइड करना है करती क्या है, पब्लिक जाने उनको पढ़ाई से क्या। अभी भी दुख है, क्योंकि पहले होता था छोटे बच्चों को पढ़ाई से दूर भागते थे। क्या आज के बच्चे पढ़ाई से दूर भागता है? मैं नहीं जानता, नहीं जान सकता मैं इस बात को। मैं सत्ता में हूँ, पावरफुल आदमी हूँ, मैं क्यों छोटी बातों की परवाह करूँ? ये बात आके रुक जाती है। फिर क्या करे कोई? अगर हमारे को देखने वाला ना हो कोई, हम कुछ ना देखें, अपने आप को कुछ ना करें, कुछ दुकान करेगा? संविधान में खाली कह देने से कि हम भारत के लोग हैं, हम इस देश को संगठित करते हैं पूरी अपनी शक्ति के साथ, पूरी अपनी कसम के साथ और पूर्ण निष्ठा से कि हम भारत को एक ऐसा प्रभुसत्ता देश बनाएंगे, एक ऐसा समाजवादी देश बनाएंगे, एक ऐसा सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष देश बनाएंगे, जैसे लोकतंत्र रखेंगे और यहाँ पे सिक्योर करेंगे। और ये सब बातें हम लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, कहाँ से आते हैं कहने के लिए? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका भाई बहन है जो आपको सलाह दे रहा है या कोई विज्ञान बता रहा है। आपका होना चाहिए ऐसा। अगर आपके पास नहीं है तो मैं क्या करूँगा उसमें? मैं बहुत नॉर्मल बात कर रहा हूँ, कोई स्पीच नहीं है, कुछ नहीं है, एक अपने दिल से बाहर निकालने वाली बात है। क्यों ना बोला जाए, क्यों ना सुना जाए, क्यों ना करा जाए? ये प्रश्न उठना नहीं चाहिए क्या? इतने सारे पॉइंट है हमारे देश में, इतने सारे बाहर। अब देख लीजिए इराक में कितना आंदोलन चल रहा है, वो लोग सुनते नहीं है, सड़कों पे आ गए, सैकड़ों मर भी गए, फिर भी वो कह रहे हैं हम मार दो और कर दो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमको गद्दी से हटा के छोड़ेंगे। इसे कहते हैं शक्ति, इसे कहते हैं पावर, जो हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में है ही नहीं, क्योंकि हमारे देश में जो बैठे हैं लोकसभा में वो इंसान नहीं है, गुंडे हैं। 233 गुंडे हमने बैठाए हैं अपनी शक्ति से। और शर्म की बात क्या हो सकती है? और क्या शर्म की बात है तो बताइए। आपके अपने वोट ने हमारे सबसे बड़े हॉल में, सबसे बड़े और एक कानून बनाने वाले घर में ऐसे 233 545 में से आदमी भेजते हैं जो कि हमारे ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं। हम नहीं ले सकते अपने ऊपर चेक, हम नहीं कर सकते अपना चेक, हम नहीं कर सकते, हम अनपढ़ गंवा रहे हैं, हम नहीं जानते कुछ, नहीं जानते हम कुछ। आप जितने मर्जी यूट्यूब चला लीजिए, जितने मर्जी बातें कर लीजिए, जितना मर्जी उनको सोल्यूशन दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फ्री के मांग की कोई वैल्यू नहीं होती है। यही है दुनिया का असूल। आपको जो फ्री में मिला, भारत की स्वतंत्रता फ्री मिली, भारत का आग फ्री मिला, भारत का नशा फ्री मिला, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। फिर कोई क्या करेगा? आप जानना नहीं चाहते हो। जानना आपको है, सीखना आपको, मुझे नहीं। जब मैं आपकी जगह हूँ तो मुझे सीखना होगा और ट्रायल करके सही सही कर दूंगा। लेकिन आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं। आप सिर्फ डरपोक सोसाइटी हो, डरपोक रहो ही। कोई आपको उठा नहीं सकता, कोई गुस्सा दिला नहीं सकता, क्योंकि आप भ्रम में रहते हैं, भ्रम में चलते हैं।
पैसे वाले लोग के बच्चे बाहर चले जाते हैं, पैसे वाले वहाँ चले जाते हैं, तो वही सब बाहर जाने में बैठे हैं, बाहर का माल खाने में बैठे हैं। तो ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री ने बाहर के लोग ला दिए विजिट करने के लिए, अपने लोगों से डर था। क्या कहा जाए भैया, इतना डर किस लिए, क्यों डरे इतना? हमने क्या किसी का लिया है? वोट ही तो देते हैं, और उनसे लिया क्या? हमसे हमने कुछ नहीं लिया। उन्होंने हमसे वोट लिया हम अपनी सेवा करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। क्या करें? कहीं सरकार बना दी गई, कहीं नहीं बनाई गई, लेकिन जो बना दी गई वो चलने वाली नहीं है, और जो नहीं चल रही वो बिखरी वाली रही है। कहने की बात है सब। खैर, बहुत बातें तो नहीं हुई आपसे, बहुत बातें होनी भी नहीं चाहिए थी। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ फिर दोबारा, आप भारत के प्रेमबल को समझिए। आप समझिए कि आपको सोशल जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए, आपको बराबरी चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए, आपको ब्रदरहुड करना है, भाईचारा बनाना है देश में। ये आपका प्रेमबल कहता है। और आपका प्रेमबल ये भी कहता है कि आपको हक दिए हैं तो सबको हक है, आपको ड्यूटी भी है, आपका कर्तव्य भी है कि किस तरह से आप देश में सबको पालें। जानवरों को कैसे पाला जाए, उनको पानी में कैसे गिराया जाए, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन और जगह ऐसा नहीं है। हर जगह लोग सोते नहीं, जागते हैं। वो जानते हैं कि हम जाग गए, हम सो गए, ये हमारा नुकसान कर देंगे, हमें लूट के ले जाएंगे। और हुआ भी है, कई फेस फंसे भी हैं, प्राइवेट कंपनी फंसी भी हैं। जब बड़े लोग फंस जाते हैं, लोग आवाज़ उठाते हैं, जवान लोग आवाज़ उठाते हैं, तो आवाज़ सुनी भी जाती है। और सुनी जाती है क्योंकि वो खाली नहीं चाहते कि हमारी पार्लियामेंट में शोर मचता रहे, पब्लिक को बता भी ना हो। नहीं चाहते ये वो। लोग जब नहीं चाहते तो क्या करोगे आप? आंदोलन कर सकते हो, शोर मचा सकते हो, ग्रुप मचा सकते हो, लेकिन लोग नहीं करेंगे, आपकी कोई सुनेगा नहीं। ये पक्की बात है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो देश तो ऐसा नहीं बनेगा। कैसे बनेगा सोचिए। देश बनाना एक का काम नहीं है, बहुत कुछ लगता है देश के बनाने में। आप क्या समझते हैं ऐसे ही बन जाता है? कश्मीर का इशू आप सब जानते हैं, बार बार मैं कहता हूँ, फंस गया, पूरी तरह फंस गया कश्मीर का इशू। कोई नहीं जानता कि क्या होगा उसमें। ऐसा फंसा है कि उसको कोई आंसर नहीं है। उस ऐसा फंस गया है, कोई आंसर नहीं है उसका। आप क्या करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे उसको? कौन सॉल्व कराएगा उसको? कैसे होगा? कौन जवाब देगा उसका? बैठ गए लेके परमानेंट, बैठ गए लेके उसको, हम क्यों बैठ के लेके? हम नहीं जानते। क्या करेंगे उसका? कैसे करेंगे? आगे पीछे नहीं दिख रहा, फंसा के रख दिया। हमारा एक सरकार ने ऐसे आके रास्ते पे खड़ा कर दिया। वो इशू, वो प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम से ही प्रॉब्लम हो गई। सोचा था खुद क्या कर देंगे हम, हो गया कुछ और। लोगों को नहीं पता, समझ नहीं आ रहा, लेकिन हुआ है प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप क्या समझते हैं ले लेंगे आप? नहीं, अब गया तो गया। जब पब्लिक सोच ले हम नहीं करते कोऑपरेट, हम नहीं सुनते तुम्हारी बात, तो जो मर्जी कर लो, कुछ भी नहीं कर सकते आप। क्योंकि देश का मतलब पब्लिक होती है, राज्य का मतलब पब्लिक होती है। पब्लिक नहीं सुन रही आपकी तो आप कैसे राजा? पब्लिक नहीं सुन रही आपकी तो आप कैसे सरकार, कैसे गवर्नर? कुछ मतलब नहीं रह जाता आपकी गवर्नर का। एक 9 लाख मिलिट्री नहीं, आप 90 लाख मिलिट्री रख लो, जिसने नहीं सुनना तो नहीं सुनना। जबरदस्ती नहीं की जा सकती किसी के साथ भी, बेशक गुलाम भी क्यों ना हो। गुलाम भी नहीं जबरदस्ती काम करेंगे, खाना तो उनको भी खिलाना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो? आपने क्या जीत लिया ऐसा करके? पब्लिक तो समझती है पता नहीं क्या जीत लिया। जानती कुछ नहीं, समझती कुछ नहीं, पढ़ती कुछ नहीं, बस हो गया हमारा। क्या हो गया हमारा? पता नहीं। क्यों नहीं पता? बताया नहीं। किसने नहीं बताया? न्यूज़ ने नहीं बताया। न्यूज़ वाले ने ठेका लिया बताने का। वो तो चोर है, वो तो बताएगा नहीं। क्या करेंगे फिर आप?
कौन बताएगा आपको? पता नहीं, पता नहीं क्या होगा। अरे पता नहीं क्या होगा क्या मतलब है? छोटे बच्चे हो, पैदा हुए हो अभी, पूछो जिसने किया उससे। पूछेंगे नहीं आप, पूछ भी नहीं सकते आप। बताएगा वो नहीं क्या किया उस सच बात को, बस खत्म कर दिया, 370 खत्म कर दिया, पहले से खत्म कर दिया। फूल्स स्पीक लाइक दिस, फूल्स स्पीक लाइक दिस, दैट इज फैक्ट ऑफ लाइफ। सच्चाई यही है कि मूर्ख लोग ऐसी बातें करते हैं और मूर्ख लोग ऐसी बातें सुनना पसंद करते हैं। पता ना उसको ना पता आपको, बस खुश खुश खुश, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। किससे कहते हैं पागल लोग? क्यों कौन होते हैं पागल? शुरू हो जाते हैं बिना बात का, बिना बात का शुरू हो जाते हैं, पागल नहीं होते हैं। बिना सोचे समझे, बिना हिसाब लगाए, बिना ये सोचे कि इसका क्या अंत हो सकता है, आप कोई काम करोगे तो उसका ऐसा ही रिजल्ट आएगा, ऐसा ही रिजल्ट आता है और रहता है। हमने कहा हम आपके साथ रिश्ता नहीं रखते, हम कश्मीरी हैं, हमने आपको तलाक दे दिया, अब हमारे साथ आओ मत, बात मत करो। तलाक दे दिया हमने आपको, चाहिए अपने घर में रहिए। लेकिन वो कहता है नहीं, ये घर हमारा है, ये घर आपका नहीं है, ये हमारा है। ऐसी सर पैर की बात जहाँ होने लगे, आप क्या करेंगे सिपाही लोग? गए तो थे कुछ और करने, कर दिया हमने कुछ और। अब बताइए ठीक कैसे करें? आप हैं हमारे और, हमसे क्या पूछते हो आप? हम क्या ठीक करेंगे? गलत तो आपने किया है, आप समझिए। हमने तो गलती किया, लेकिन हमारी गलती आप पढ़ लीजिए, सुधार दीजिए। जब इस तरह के लोग आ जाए लीडर बन के कि हम गलती करेंगे तो भी आप सुधार दीजिए, और हमारे सुधरे में तो आप सुधरेंगे ही, हमारी गलती में भी तो आप पड़ जाओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे जी। कमाल है, कुछ नहीं कहेंगे जी, सब कुछ कह दिया, सब कुछ बर्बाद कर देगा तो कुछ नहीं कहेंगे जी। कमाल है भैया, बिल्कुल कमाल हो गया। क्या करे कोई, बताइए। ये कश्मीर की तो चलो एक प्रॉब्लम है, हमारे हाथ में रहेगा नहीं रहेगा ये तो वक्त बताएगा, क्या होता है क्या नहीं होता है ये वक्त बताएगा। क्योंकि लीगली आप देखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं इसमें, अगर आप इसको नियम के रूप से देखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम है। और ये लोग आगे जाने वाले, ये कब पीछे आ जाएंगे कोई नहीं जानता। फिर क्या करेगा कोई? और भी समस्याएं कश्मीर के अलावा, आर्थिक समस्याएं हैं, उछल रहा है देश, मर रहा है देश, सब समझ नहीं रहे आर्थिक स्थिति का क्या हो रहा है। कोई भी सामान खरीदना महंगा हो गया, होगा ही महंगा, इम्पोर्टेड सामान है। जब आपका डॉलर गिर गया तो सामान तो महंगा होगा ही। आप कोई आइटम खरीद लीजिए बाजार में जाके, सब्जी भी महंगी है, वो तो इम्पोर्ट होती है नहीं, फिर महंगी है। तो भैया काम नहीं पहले, जॉब नहीं पहले, दिवाली ठंडी गई, दशहरा ठंडा गया, कुछ है नहीं बिजनेस। आप कह रहे हैं जी हम बहुत आगे जा रहे हैं, कितनी जीडीपी? 6%, 5%, और आप क्या कह रहे हैं हम डबल कर देंगे आपके पैसे 22 में। क्यों इतना लोगों को बेवकूफ बनाते हैं साहब, क्यों बेवकूफ बनाते हैं? आप जानते हैं वो सब नहीं होने वाला, बोलते रहो, बोलते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, यही तो हमारा आपका नाता है। हम बोलने का एक्सपर्ट है, आप सुनने के एक्सपर्ट बनो। हम ऐसे ही बोलते जाएंगे और भूलते जाएंगे, फिर कह देंगे जुमला था, आप कह देना जुमला था, बात खत्म, गाना खत्म, अपने घर जाओ पैसे हजम। यही कहा करते थे लोग, हम मान लेते हैं। हमें क्या चिंता आपकी, हमारी एक ही चिंता होती है, हमें वोट मिल जाए बस, वो आप दे देते हैं, आपका धन्यवाद है, उसके बाद हम राजा हैं। हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब एक ही है, मेरा वोट सेफ रहना चाहिए, मेरे लिए, किसी नेता के लिए सेफ रहना चाहिए, बस, हमें कुछ और नहीं लेना आपसे। जब जिम्मेदारी लोग ऐसे हो जाएं, राजनीति के उच्च पदों पर लोग ऐसे हो जाएं, तो क्या करेगा आम आदमी, क्या करेगा बेचारा, बताइए। आम आदमी के हाथ में है क्या? कुछ नहीं कर सकता वो।
वैसे ही बोल दे कोई आपको कुछ, आप खुश हो जाते हैं। कड़वा बोले तो आपको दुख लगता है। लेकिन याद रखना, कड़वा ही सच होता है, झूठ झूठ ही होता है। वैल्यू सच की होती है, कड़वे की होती है, और किसी की नहीं होती है। ये बात बहुत जरूरी है याद रखना। आप ये बात याद नहीं रखेंगे तो नुकसान उठाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे आप। सच बोलने में कभी नुकसान नहीं होता, याद रख लेना। लेकिन झूठ बोलने में नुकसान ही नुकसान है। झूठ मानने में भी नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि झूठ एक बार नहीं, ट्रिलियन टाइम्स बोल दीजिए, बिलियंस टाइम बोल दीजिए, कितने भी टाइम्स आप बोल दीजिए, आप सोच के कि बस मेरा काम चल गया। लेकिन मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना, एक सच सबको गिरा देता है। एक सच आदमी सबको बंद कर देता है मुंह को, बिना ज्यादा बोले। सच्चाई की यही वैल्यू है। ट्रूथ इज ओपन एंड ट्रूथ इज फेस बाक, इट इज देयर। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म। हमें क्या जरूरत है जनगण गाने की, वहां खड़े होकर रात के पे? जनगण हमें नहीं है, उसको गाने की है, तो दूसरा गाना गाने की भी है, वंदे मातरम। क्या करें हम, बताइए। कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता, कुछ नहीं समझता। ऐसा देश, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया है। जिस देश ने अंग्रेजों को इस देश से निकाला, वो अंग्रेज जो सैकड़ों साल राज करके गए, उनको धक्के मार के यहां से निकाला, उस देश के लोग इतने लेजी, इतने सुस्त, इतने चिंता फ्री, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं समझ आ रहा कि वास्तव में हम उनकी औलादे हैं तो देश को आजाद करके गए, या हम कुछ और हैं। हम वो तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते वो। मुझे जी बता, हम कौन हैं? हम कौन है यहाँ पे, जो ना अपने बारे में सोचते हैं, ना समाज के बारे में सोचते हैं, ना देश के बारे में सोचते हैं। हेरा फेरी के बारे में जरूर सोचते हैं, दूसरे का माल हड़पने के बारे में जरूर सोचते हैं, तालियों में आपका क्या बोलते हैं, तकरार में जरूर सोचते हैं आपसे। हम वेपन्स के बारे में जरूर सोचते हैं, लेकिन शिक्षा के बारे में कौन सोचते हैं? यही तो समस्या है हमारी। हम सोचने लगेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे सीट से, और हम इतना भी नहीं सोचते कि हम ही सीटों पे आ जाएं, कि हम आ नहीं सकते। क्या करे कोई एक ऐसे देश के बारे में जहां बिल्कुल सेनाएं सोते रहे, जहां ऑफिसर सोते रहे, सब सोते रहे। क्या होगा, कौन जगाएगा देश को? अपने आप सो जाएगा देश। बातें करते हैं हम थर्मल बनाएंगे, थर्मल प्रोफेशन बनाएंगे, थर्मल साइंस को एक कर देंगे, सबको हम मेरे चलते रहेंगे, फिर मेरी इच्छा नहीं है। क्या करूं मैं, बार बार मैं तंग आ गया बोल बोल के। कई बार मुझे अपने आप से जलानी होने लगती, गलानी होने लगती है, आखिर मैं क्यों सब बोल रहा हूँ आपको। कई बार मैं सोचता हूँ, why I am just telling you all this which is not required to be told, because you should know all that. You're not doing that, you're not even having any interest. I don't find any response from engineers, from professors, from others, why I'm doing this, but still my conscious, my mind asks me, do it, do it, do it, do your job, what you do, don't worry about what people respond to. ऐसा होता है, मुझे गुस्सा भी आता है, प्यार भी होता है, खुंदक भी आती है, जलन भी होती है, दिमाग भी खराब होता है, नींद नहीं आती है कि बिना बोले मैं आपको चुप हो जाऊं। मैं चाहता हूं कि आप चलो, पढ़ नहीं सकते तो सुन तो लो, लेकिन नहीं। आप इतने जिद्दी हैं, देश के लोग इतने जिद्दी हैं, सब कुछ दे लो, ले लो, जाओ। कोई पूछेगा उनसे, टीवी वाला, यूट्यूब वाला, तो जवाब देंगे बड़े बड़े, लेकिन सामने कुछ नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? ये देश सुधर जाएगा, नजर मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा।
ये देश कुछ सोचेगा संविधान के बारे में, मुझे नजर नहीं आ रहा। ये देश कुछ करके दिखाएगा, मुझे नजर नहीं आ रहा। क्यों? आपको नजर आ रहा है? आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप नहीं होने देना चाहते। आप में हिम्मत नहीं है नेताओं के खिलाफ बोलने की, जो कि जरूरी है। आप में हिम्मत नहीं है गलत काम के अगेंस्ट बोलने की। आप में हिम्मत नहीं है पुलिस के खिलाफ बोलने की। आप में हिम्मत नहीं है गलत के खिलाफ बोलने की। और जब आपकी हिम्मत गलत को गलत नहीं कह सकती, तो आप स्वयं गलत है, याद रख लेना। गलत तो गलत है, कभी सही नहीं हो सकता, लेकिन जो सही है उसको भी गलत कर देता है। यही तो हमारी खासियत है। हम हैं भारत के वासी, कहते हैं जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। बाकी तो फॉलो अप है। एक बार और आता है यहाँ पे भारत का कई नाम, लेकिन असली बात है जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जन जानते हैं आप कौन होते हैं, मन भी आप जानते हैं, गण भी आप जानते हैं, भारत भी आप जानते हैं, जय भी आप जानते हैं। इसका जब कंबाइंड मीनिंग क्या होता है कि हम जन गण मन अधिनायक नेता हैं, अधिनायक हैं, हम वास्तव में नेता हैं, इसके अंदर हम रहते हैं। इस जहाँ लिखा है जन गण अधिनायक जय हो, और हम वहाँ के प्रोड्यूसर हैं, हम वहाँ के सीरियल बनाते हैं, हम वहाँ के लोगों की रामलीला दिखाते हैं। ये हमारा सार्वजनिक बम है। भाई मैं तो उसको बम नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ यूज करो अपनी शक्ति को, जो भी आपके अंदर शक्ति है उसे यूज करो। कोई बम बम नहीं है, सब बमों को गिराना है, और तभी गिरेगा कि हाथ काम करेगा। हाथ तो काम नहीं कर रहा हमारा। कौन काम करेगा हमारा? हाथ काम नहीं करेगा तो ना पैर काम करेगा ना हाथ काम करेगा, तो कौन करेगा? सबसे अधिक हमारा काम दिमाग करना चाहिए। जो विज्ञान कहता है, जो समाज का सामाजिक ज्ञान कहता है, वो होना चाहिए। जो निकम्मे पर्सन का हो, निकम्मे आदमी का हो, वो कहाँ से लाएंगे? हम सब निकम्मे हैं। हमको अपने को पर्सन करने वाला भी बनाना पड़ेगा, अपने को काम करने वाला भी बनाना पड़ेगा। हम जिस दिन को बन जाएंगे, इस देश सुधर जाएगा। याद रखना, आप किसी भी राजनीति करने वाले नेता का विश्वास न करो, किसी का भी नहीं। जो आदमी आपकी कहे बात को पूरा करे, आप उसको विश्वास करो, या जो आदमी आपके साथ रहे उसको विश्वास करो। हेरा फेरी में विश्वास मत करो। जब ऐसा होएगा, ये सारे लोग कांपेंगे। अब लोग कल बेनिफिट नहीं ले रहे। मैं जानता हूँ हम भी बेनिफिट ले रहे हैं, हमारी सोसाइटी भी ले रही है। हम दूसरों को कहते हैं, देखता हूँ मैं कि यमुना नदी या दूसरी आगे नदियाँ किस तरह से जाम हो जाती हैं, किस तरह से ओवरफ्लो कर जाती हैं। भाई कुछ तो है। तो क्या करें हम? बांसुरी बजाएं, ढोल बजाएं, ताशे बजाएं, परात बजाएं, क्या बजाएं? बोलना नहीं आता तो हमको लिख के दें, लिखना नहीं आता तो हम बात करके लें। जो भी हमें आता है उसको करें। करेंगे नहीं, शोर मचाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बोलते रहेंगे, बस बोलते रहेंगे। समझेंगे नहीं, समझ नहीं सकते हम। क्यों? हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ क्यों समझते हैं? हमें पता है कि हम वहाँ समझेंगे नहीं तो हम पास नहीं होंगे, हम पास नहीं होंगे तो डिग्री नहीं मिलेगी, हम डिग्री नहीं मिलेगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो और पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो हमारी शादी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और हम आत्महत्या कर लेंगे या सेल्फी लेते हुए जल के नीचे आ जाएंगे। अपना भविष्य अपने हाथ में होता है, किसी सरकार के हाथ में नहीं होता, याद रख लेना। सरकार वरकार कुछ नहीं होती है, कठपुतली होती, कठपुतली पब्लिक के हाथ में। यहाँ उल्टा है, यहाँ सरकार ने पब्लिक को कठपुतली बना रखा है। सरकार नौकर है आपकी, मालिक नहीं है। ठीक है, उनकी अपनी पावर्स हैं, लेकिन आपके लिए हुई पावर्स हैं, उनकी अपनी ओरिजिनल नहीं है। वो जमींदार नहीं है हमारे के जैसा कहेंगे हम मान लेंगे। जमींदारी में चलता है ऐसा यहाँ।
ये लोकतंत्र है, यहाँ सरकारी काम चलते हैं, लेकिन सरकारी काम भी उस हिसाब से चलते हैं जो हमने किताबों में कहानी में लिखा हुआ है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। नहीं समझेंगे करेंगे हम, जितना मर्जी कह ले कोई, जितना मर्जी कह ले, चलते हुए को मार दो, दूसरे धर्म के आदमी को कत्ल कर दो, आग लगा दो उसको, यही हमारा धर्म है। संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति का क्या मतलब है? क्या होती है संस्कृति? नहीं समझेंगे हम, नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे। दूसरी दुनिया करके दिखा देगी, हम वो नहीं करेंगे, हम अपनी ही बकवास करेंगे, अपने ही करेंगे। अपने आप को समझेंगे हम बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम बहुत पीछे हैं, विज्ञान में पीछे हैं, ज्ञान में पीछे हैं। दूसरों की कई को फौरन मान लेंगे हम, देखो उस देश से ही आ गया है, उन्होंने कहा कि वो ठीक है, अब हम इससे अपने राज को व्याज करवा देंगे, ये सोच है। वेरी ग्रेट सोच। खैर, मेरा तो आपसे यही कहना है, भारत को भारत समझो, भारत को बेवकूफ मत समझो। ठीक है, अभी सरकार कैसी है, मिल गई है उसको, कुछ समय मिल गया है, लेकिन खतरनाक जा रहा है देश, खतरनाक। जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो लोकतंत्र होना चाहिए, जो सिस्टम होना चाहिए, उसकी टांगे तोड़ी जा रही हैं। कोर्ट को भी नहीं बख्शा जा रहा है, तो आप और मैं और कार बाकियों की क्या वैल्यू रखती है? ठीक है, कभी किसी की गोश में बैठा तो जल्दी पहुंच सकता हूँ अपने स्टेशन पे, लेकिन उतरना फिर पड़ता है रास्ते में। लेकिन हम लोग नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, अच्छे काम को करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं बस मेरा काम होता रहे और बाकी सब जाए फाड़ में। सोच ऐसी हो गई है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। मैं तो किसी का कसूर नहीं मानता इसमें, मैं नहीं मानता, कोई माने या ना माने। मैंने कसम खा रखी है कि मैंने जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कम टाइम हो जाए ना हो जाए, क्या फर्क पड़ना है। मेरी गाड़ी चलनी चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए, मैं समाज में रहना चाहिए, मैं समाज में रहना चाहिए। Again, I am telling you, open your eyes, open your minds, open your mouth, open your stamina, open your potential, and raise voice. We want problem solved. We want economy come up. We want employment. We want power. We want to run fast. We want bank system good. We want get money back which was looted. Do it. Do it. Bhakti will not solve problem. Not solve problem. It will complicate problem. It's like division. Create division among people. Bhakt fight for non-bhakt and waste time. No, we cannot do that. We are not sleeping. We are not sleeping. We are only closing our eyes. But we are looking at mind, through mind. Do you understand? I am not worried about others. No. I am worried about ourselves. About me, about you. In this Diwali, how much clay was used? How much sand was used? Too much. It was produced too much, manufactured at house and brought to this country. Right or wrong, it happens. Right to our city or home. This country is my home, this country is my home, this country my destiny, this country is my milestone, this country my future. And I have to realize it, I have to find it, I have to strengthen this. Not by words, by actions. You can strengthen yourself if you are not acted the way Kashmir has been acted upon. Why they acted, I don't know. कौन सॉल्व करेगा हमारी इन प्रॉब्लम्स को? कोई है जानने वाला?
कौन सॉल्व करेगा हमारी इस प्रॉब्लम जो हमने खुद क्रिएट की? कोई है जानने वाला? कोई है बताने वाला? कोई नहीं बताएगा यहाँ पे। जो लोग बोल सकते हैं वो टीवी पे नहीं आते, वो टीवी वाला बुलाता नहीं है। वो खाली यूट्यूब पे बोल सकते हैं, फेसबुक पे बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई सुनेगा तब? पता नहीं, सुनना भी नहीं चाहते लोग। मैं पहले लिखा करता था बहुत, पता नहीं लोग पढ़ना नहीं चाहते थे, कितने घंटे खराब करता था लिखने में, इंग्लिश में तो उसको हिंदी में या किसी और तरह से किसी में भी उसको सोचता था लिख दो लिख दो, घंटों लगे रहते थे, लेकिन एक पेज भी तैयार नहीं होता। जब एक छात्र ने समझा दिया कि साहब छोड़िए और चैनल की बात कीजिए, उनका क्या हो रहा है। हम सुनना नहीं चाहते, हम सुनाना नहीं चाहते, हम बस पाना चाहते हैं। हमें गैस की सब्सिडी दे दो, हमें वाटर का बिल माफ़ कर दो, हमें बिजली का बिल माफ़ कर दो, हमको ये माफ़ कर दो, हमको वो माफ़ कर दो, हमको पेंशन दे दो, खाने का दे दो, हमको ये दे दो। अरे हमारे को सब माफ़ है। ये देश है मेरा, याद रखना, ये देश है आपका, याद रखना। पागल नहीं था सुभाष, पागल नहीं था गांधी, पागल नहीं था तिलक, पागल नहीं था गोडसे। पागल था गोडसे, यस गोडसे तो पागल ही था, उसको पागल लेना चाहिए। जिन्होंने देश की आज़ादी में जाने दी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन्हें भी हमें जवाब देना है जाके। जवाब देंगे आप? फेस करेंगे उनको? नहीं करेंगे आप फेस। आज लोग कहते थे गांधी को मारा, अच्छा किया। शर्म आती है ऐसे लोगों पे, और ऐसे लोगों पे शर्म आती है जो गोड से ही पूजा करते हैं। वो ऐसे कितने उन्हें बताएं जिन्होंने अंग्रेजों को मारा, मुझे जवाब दें। कितने हैं आरएसएस वाले, कितने हैं आप लोग भक्त जिन्होंने आरएसएस के थ्रू किसी को मारा, अंग्रेज को? कितने हैं लोग बताइए? अफरीदी है क्या जिसने वाइसराय को मारा था? कौन है आरएसएस में? नहीं मारा किसी ने। पूजा करते थे अंग्रेजों की, अंग्रेजों की पूजा करते थे। क्यों भाई, क्यों करते थे आप पूजा अंग्रेजों की? आप हमेशा सवाल उठाते हैं इस सड़क का नाम अकबर से बदल के ये रख दो, इस सड़क का नाम बदल के रख दो। आप कभी नहीं कहते इस सड़क पे अंग्रेज का नाम लिखा है इसको बदल दो। आप कभी नहीं कहते इस देश का नाम इंडिया है इसको बदल के भारत रहने दो। आप ये क्यों नहीं कहते? कभी नहीं मैंने सुना आज तक कि इंडिया का नाम निकाल दो, कभी सुना? इंडिया के हमारा नाम है, किसने दिया? क्यों रखते हैं इंडिया? हमारा भारत नाम बुरा है क्या? क्या बुराई है भारत के नाम में? बताइए मुझे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत वहां भी आता है, और ये नहीं आता यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति इंडिया या ग्लानिर्भवति हिंदुस्तान, वहां नहीं आता। फिर राम ने भी कहा था मैं भारत वर्ष के मत्था टेक रहा हूं। तो हम ऐसे नाम को जो हमारा अपना है, हमारे अपने पूर्वजों ने दिया, अपने देश के लिए दिया, हम उसको फेंकना चाहते हैं और एक नया नाम लाना चाहते हैं। ये देश, सच पूछो तो ऐसा देश कोई नहीं और हो सकता। देश की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक की बात नहीं कर रहा, नेचुरल रिसोर्सेस की बात कर रहा हूँ। हमारा देश जो राज्य संपदा है, राष्ट्र की संपदाओं में बहुत आगे है, बहुत आगे है, लेकिन हमने उसको पीछे कर दिया अपनी प्रॉब्लम से। कि हम सब लूटना चाहते हैं, उसको सब लूटना चाहते हैं, बिना जाने कि सब कुछ लूट के इसका रिजल्ट क्या होगा। सब कुछ जाने, काट दो पेड़, काट दो ये सड़क, काट दो ये रास्ता, काट दो यही, काट दे वो, बनाने की नहीं सोचते। कौन सोचते? क्यों सोचे? क्या करेगा अकेला देश, बताइए? आप जैसे कमजोर नागरिकों के साथ, आप जैसे नागरिक जो देश को आगे चलाना नहीं चाहते, जो बस मस्ती में रहना चाहते हैं। मैंने इंजीनियर्स का एग्जाम्पल दिया था, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन वो आप खुद भी दे सकते हैं। दुकान बैठ के खोल जाते हैं लोग, गली में बैठ जाते हैं, खोल के नीचे बैठ जाते हैं, साइकिल चलाते हैं। आप सबको तो हटा नहीं सकते, तो बोलते क्या उनसे? सोचिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, सोचिए, थोड़ा समय लगाइए सोचने में। समय लगाइए, आपकी क्या हक के अलावा आपके फर्ज क्या है,
आपके कर्तव्य क्या हैं, वो बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि आपको फर्ज नहीं पता, कर्तव्य नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? गाने गाएंगे, फिल्म देखेंगे, फिल्म स्टारों के बारे में जाएंगे, क्रिकेट के बारे में जाएंगे, उतना ही तो जानेंगे। बल्कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी रोएंगे। जिसको काम मिल जाता है ना, उसमें भी उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। थक गया साहब, मेरे बस का नहीं है। थक भी बहुत जल्दी जाते हैं आप। थक गए हम साहब, स्ट्रेस आ गई बॉडी में, बहुत काम किया, आज 12 घंटे काम किया। अरे किसान की तरह तो काम नहीं किया आपने। आपने हल तो नहीं चलाया, आपने कुल्हाड़ी तो नहीं चलाई, बैठे हुए कंप्यूटर पे काम करके आ गए, बस हो गया काम। आपका काम आसान क्या है कंप्यूटर, मैं मानता हूँ, लेकिन आपका काम तो मुश्किल नहीं कर रहे। आप ऐसा तो नहीं कर कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे। कंपनी में ठीक है, कहीं आप मिनिस्टर होंगे, कंपनी के मैनेजर होंगे, कंपनी का कुछ और होगा, इतना ही तो होगा। आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, जो छोटा आदमी हो क्या करेगा? ये सब जरूरी है जानना। आप कहेंगे बार बार कोई बात करते हैं, ऐसा आदमी बोर नहीं होता, ये बेवकूफ आदमी है, कहाँ से आ गया? मैं बेवकूफ हूँ, मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि अनपढ़ मैं नहीं हूँ, ये भी जानता हूँ। आपने जितनी पढ़ाई की है उससे ज्यादा मैंने की होगी। आपने पढ़ाई डिग्री के रूप में की होगी, मैंने प्रैक्टिकल के रूप में की। मैं डिग्री को पढ़ाई नहीं मानता, किसी भी डिग्री को। डिग्री तो पास करने के लिए होती है, लेकिन लाइफ की डिग्री पास करने के लिए नहीं होती है। लाइफ की डिग्री काम करने के लिए होती है। लाइफ में जो आपने सीखा है पढ़ाई में, उसको कार्य करना, उसके हिसाब से, उसको कहते हैं कार्यक्रम। आपने कौन सा कार्य किया है, तो आपको कार्यक्रम का नाम दिया जाए कि आप कार्य करता है। मेरे को एक इनाम मेरी सीवी की बेस मिला था एक समय, उसमें कहा था कि भारत ज्योति अवार्ड। मेरे पास मैसेज आया था कि आप इतने हजार जमा करिए, आपको भी मैसेज आएगा। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ ऐसा क्या? तो उनकी सेटिंग होती है मंदिर में, ये सब फल रखे हैं, प्रसाद रखा है, ये रखा है, वो रखा है, जो जितना आएगा उसके हिसाब से देते रहना, ये उनके रूल्स है। लेकिन क्या ये प्रसाद वास्तव में प्रसाद है? नहीं, नहीं है प्रसाद। प्रसाद वो जो मैं देश को दूं, जो पब्लिक को दूं, देश के लिए करूं, नहीं तो नहीं। नहीं, देश को मैं कैसे सुधारूं, ये मेरे अंदर होना चाहिए, मेरे माइंड में होना चाहिए, मेरी सोच में होना चाहिए। लेकिन नहीं, नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सब ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे। 70 साल में हम लोगों का खून ठंडा हो गया है, ठंडा। क्योंकि खास बात यह है, हमारे साथ दो चीजें आती हैं। रोटी कपड़ा मकान तो भूल जाओ आप पहले। रोटी की हमें चिंता नहीं रही, सस्ता आटा मिला, सस्ती चीनी मिली होगी, इतनी तो सस्ती मिली होगी कि हम खा सकें आराम से 2 टाइम उसको। फिर उसके बाद दूसरा देश का आ गया, भारत माता चली गई, भारत चला गया, ये धीरे धीरे भारत आ गया। उसके बाद गुर्दा के अंदर कहीं प्रॉब्लम थी, उसकी गुर्दा वहां पे आ गई। तो क्या करेंगे? अरे भाई सोचो, कुछ देश के लिए सोचो, अपने लिए सोचो, विश्व के लिए सोचो, सरकारों के लिए मत सोचो। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। सरकार तो आप हो, वो तो खाली गवर्नमेंट है। सरकार आप हो, स्वाधीनता आपको मिली है, आपके लिए सब आपके अंडर अधीन है। आप उनके अंदर अधीन नहीं हो, वो आपके अंदर अधीन है। क्या करे कोई? इतने बार बार समझाने पे, बेसिक बात समझाने से ना समझ पाए देश के लोग, तो इसका क्या कोई करेगा? मैं अकेला क्या कहूँ, कितना कहूँ? लोग कहते हैं आप बोलते रहते हैं, इतना लंबा बोलते हैं, कुछ फायदा तो होता नहीं है। मैं फायदा सोच के, मैं नुकसान सोच के अपना काम तो नहीं बंद कर दूंगा। देखने वालों का काम तो मैं नहीं कर सकता, सुनने वालों का काम मैं नहीं कर सकता, अपना काम तो मैं कर ही सकता हूँ। उसमें तो मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और अगर थोड़ा बहुत ही कमा लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। मुझे पूरा वैसा नहीं चाहिए। लेकिन देश के बारे में चाहिए, देश के बारे में सोचना है, सोचना है। मेरी कमी रही है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ, इराक से हो गया, फिर ये फिर हो गया, फिर ये हो गया, टर्बुलेंस गया, टर्बुलेंस हो गया।
बताइए, आप क्या सोचते हैं? आप कुछ तो बोलिए। बस आप चाहते हैं कोई भौंकता रहे कुत्तों की तरह, जब मैं तो अपने आप को वही समझता हूँ, और आप सुनते रहें, बस सो जाए ना भी सुने कोई बात नहीं है, मत सुनो। एक बार मरने के बाद हो सकता है मेरी सुन लो, क्या बात है, नहीं हो सकती क्या? किसी को मौत का पता नहीं है, और मैं तो टिकट की इंतजार कर रहा हूँ को मेरा जल्दी से बुलावा आ जाए और चल दो। तब आप अकेले हो गए, कोई आज की तारीख के सब्जेक्ट में नहीं इंटरेस्ट नहीं लिया तो क्या चल नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। हम्म। सोचा कुछ, कुछ समझ दिया मैंने आपको? हाँ या ना? भारत के बनोगे या नेताओं के बनोगे, जवाब तो दे दो। नेताओं की चमचागिरी करनी है, नेताओं के भक्त बनना है, या भारत देश के भक्त बनना है, भारत माता के भक्त बनना है, भारत की शक्ति के भक्त बनना है, किसके बनना है? इतना तो सोच लेते अब तक, शर्म नहीं आती? भक्त बने किसी नेता के? अरे नेता कौन होता है? फिर वही बात, आप नेता हो, आप नेतागिरी स्वयं करो, खुद सोचो, आगे बढ़ाओ इस देश को। दे दिया किसी के हाथ में, ये कोई बढ़ा ले आगे, वो नहीं बढ़ाएगा, वो तोड़ देगा आपको। जो इंसान गद्दी नहीं छोड़ सकता, गलत काम करने के बाद भी उसको मैं नेता नहीं मानता, पब्लिक जिसको हटा नहीं सकती उसको मैं नेता नहीं मानता, और उसको पब्लिक नहीं मानता, तो दम नहीं है जिसमें, या हर चीज में फेकिज्म चल रहा हो, हर चीज ड्रामा चल रही हो, फिर कोई कैसे अच्छा नेता हो सकता है? तो साथी हो सकता है, कुछ नहीं समझ आएगा आपको, या आप कहोगे पागल आदमी क्यों टाइम खराब कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहा हमको। यस, ये हो जाता है, सीधे हो जाता है। हम्म। खैर, अब मैं नहीं चाहूँगा आपका और समय लेना, और मैं चाहूँगा कि अब मैं इस बात को बंद करूँ। आपको सोचने का समय है, सोचिए, और जो भी आगे विकास होगा इन बातों का, कश्मीर के बारे में, बाकी विश्व के बारे में, हांगकांग के, चाइना के बारे में, यूएस के बारे में, वेनेजुएला के बारे में, या और किसी दूसरे देश के बारे में, इसराइल फलस्तीन के बारे में, या हमारे बारे में, जो भी होगा हम उसको ब्रीफ करके और बस ला के उसको बचाएंगे, देखेंगे, आपको बचाएंगे, देखेंगे। आप बच सकते हैं, नहीं बच सकते हैं, आप शक्ति रखते हैं कि नहीं सकते हैं, ये सब देखना तो पड़ेगा। अभी मैं आपको जय भारत बोल के बंद करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। जय भारत।